welcome back to the last video of electrochemistry. In this session, we are going to see the nickel cadmium battery. Okay, last part which we are done with lead accumulator battery. We have done with dry cell. We are left with nickel cadmium cell. Okay, nickel cadmium cell and fuel cell. These are the two cells which are remaining in electrochemistry. Let us see what is the nickel cadmium cell look like. So we are having a positive plate, a separator. You can see over here we are having a positive plate, we are having a separator which is separated by which is a non-conductor or an insulator which separates the positive and the negative plates. Okay, then you can see over here this cell has longer life than the lead storage cell, and the anode is cadmium whereas the cathode is hydrated nickel oxide or nickel. So you need to note down these things. That is, you need to know who's the anode. This is the construction. This is called as construction. In your exam there can be a question like write down the construction of nickel cadmium cell, or they can ask you a question like write down the construction and working of nickel cadmium cell. तो पहले construction कर लेते फिर वर्किंग के ऊपर जाते हैं. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा कि एनोड कौन है, फैजा एनोड कौन है, कैडमियम, और कैथोड कौन है, हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड. Okay, then electrolyte कौन है, aqueous solution of KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution. Okay, that is your electrolyte. अच्छा लिखना है आपको, hurry up. Here we are having the overall cell reaction. Overall cell reaction is cadmium plus nickel hydroxide gives you cadmium oxide plus nickel hydroxide plus water. So who's your anode? Cadmium is the anode. Anode कौन है देखो, cadmium is the anode. Cadmium will lose 2 electrons. Cadmium you can see is losing 2 electrons, combining with oxygen to form cadmium oxide. Plus nickel is gaining 2 electrons from nickel trihydroxide. It is converting into nickel dihydroxide. So you can see that nickel is gaining 1 electron. Cadmium is losing 2 electrons. Nickel is gaining 1 electron. Either 2 है, इसके लिए 1 electron multiplied by 2, it will gain 2 electrons. If you are still not understanding, let me show you the half cell reactions. So at anode क्या हो रहा है, at anode सी ये सब किसके ऊपर डिसाइड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर डिसाइड होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हमको समझ में आता है कि हु कैन सर्व एज अ बेटर एनोड और हु कैन सर्व एज अ बेटर कैथोड. एक अलग सेशन में आपको आपके लिए लेने वाला हूं बेस्ड ओनली ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डिटेल में. ओके, सो कैडमियम इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद में व्हाट आर वी गोना गेट, वी आर गोना गेट कैडमियम 2+. Okay, so this cadmium 2+ is going to combine with oxygen to form cadmium oxide. वो अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं ionic reaction आपको दिखा रहा हूं. So at cathode क्या होगा, at cathode we are having nickel hydroxide, nickel trihydroxide था. Trihydroxide मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, +3. It is gaining 1 electron. सर यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रुको सर, रुको जरा सबर करो. देखो Ni2+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, Ni2+. तो इस पूरे रिएक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, तो पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद में यू गेट 2Ni3+ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2Ni2+, जिसकी वजह से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड will become equal. One thing is compulsory, Rohan, that number of electrons being lost should always be equal to the number of electrons being gained. Say for example, ध्रुव रास्ते से जा रहा है और उसके पॉकेट में 2 रुपए का कॉइन है और उसके पॉकेट में होल भी है, ठीक है, तो वो होल में से 2 रुपए का कॉइन गिर जाता है, पीछे से सोहम आ रहा है, तो उसको 1 रुपए का कॉइन मिलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं. 2 रुपीज का कॉइन खोया है, उसके पीछे पीछे ही, ध्रुव के पीछे पीछे ही सोहम चल रहा है, तो उसको रास्ते पे 2 रुपए का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन मिलेगा एंड सोहम विल बी वेरी हैप्पी टू बाय अ चॉकलेट आउट ऑफ इट, इजंट इट. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, अगर ध्रुव 2 रुपए का कॉइन लूज कर रहा है तो ऑब्वियसली सोहम भी 2 रुपए का कॉइन गेन करेगा, राइट. सो the number of electrons lost should be equal to the number of electrons gained. तो ionic reaction को जब combine कर रहे हैं तो whatever is same on the RHS and LHS that we need to cancel, so we have cancelled the 2 electrons, and what are we left with, we are left with cadmium plus nickel aqueous. Yes, cadmium यहाँ पे solid, nickel aqueous +3 charge में, and here because it is hydrated nickel oxide if you remember. Okay, then यहाँ पे Ni2+, ये भी किसमें है, aqueous form में. आ रही बात समझ में. तो ये आपका क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, OCR ओवरऑल सेल रिएक्शन. अभी ओवरऑल सेल रिएक्शन आयोनिक है ये, अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो इट विल बी लाइक कैडमियम प्लस निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड. तो निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड 2 ले लेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हम लोग. ओके, 2 एंड इट विल गिव यू निकल हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसा, NiOH ट्वाइस प्लस क्या आएगा यहाँ पे, कैडमियम. ओके, NiOH ट्वाइस प्लस व्हाट, कैडमियम. कैडमियम 2+ आएगा यहाँ पे, तो 2+ कैडमियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमको क्या मिलेगा, कैडमियम
ऑक्साइड। ओके, तो यहां से वाटर भी निकला है इसमें से, तो वी गेट वाटर ओवर हियर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्योंकि ये अभी तक कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़े डम रहते हैं ना, क्या करेंगे। तो OH OH और OH, निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, ऐसे दो स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए पूरा खोल के दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर। NiOH थ्राइस। तो इसमें से हम लोग ने क्या बनाया, देख मेरे भाई, इसमें से एक OH और H को कंबाइन किया, OH और H को कंबाइन किया तो क्या मिला, H2O मिला। मिला कि नहीं? ओके, और ये जो ऑक्सीजन है वो कैडमियम को दे दिया, तो कैडमियम विद दिस ऑक्सीजन विल बिकम व्हाट, कैडमियम ऑक्साइड। चलेगा? ओके, अब बचा क्या है, NiOH ट्वाइस, वो भी कितने, दो। NiOH ट्वाइस, ये एक OH इसको दे दे, तो NiOH ट्वाइस एक बनेगा, और दूसरा NiOH ट्वाइस दूसरा यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखो, आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। ठीक है, करना पड़ता है, सब सोहम भी है क्लास में, रोहन भी है, इन सबको कंसिडर करते हुए करना पड़ता है, राइट। OH OH और OH, राइट, निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड। तो आप इस बार क्या करो, इधर से H निकालो, इससे OH निकालो, ताकि बैलेंस हो जाए, राइट, मतलब दोनों में से। तो H और OH क्या मिल गया, H2 मिल गया। फिर क्या किया हम लोग ने, ये ऑक्सीजन इसको दे दो। अब ऑक्सीजन इसको दे दिया तो क्या बन गया, कैडमियम ऑक्साइड। बना कि नहीं? कैडमियम ऑक्साइड बना। ये क्या बचा है, NiOH ट्वाइस। इधर क्या बचा है, NiOH ट्वाइस। कितने NiOH ट्वाइस बचे, दो NiOH ट्वाइस, तो लिखे ना यहाँ पे, 2 NiOH ट्वाइस। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। दिस नॉट द आयनिक रिएक्शन, दिस वन इज द आयनिक रिएक्शन। हरी बात समझ में? हेलो, समझ में आया इसका वर्किंग? यस, नया चश्मा पहने वाले ध्रुव, ध्रुव टेंशन मत ले उसका। हाँ, दिस इज यूज्ड इन व्हाट, कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल पावर टूल्स, राइट, वहां पर ये यूज किया जाता है, निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी वो हो सकती है यूजलेस, मेरे को लगा तेरी बात कर रहा। तो यूजेस क्या था इसके, वो दोबारा दिखाने के लिए बोल रहे हैं सोम। इन कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल पावर टूल्स, यानी कि कभी कभी वॉच में, कैलकुलेटर में जैसे बड़े बटन सेल्स रहते हैं, वो किसके रहते हैं, दे आर द निकल कैडमियम सेल्स। ओके, ये उसके यूजेस है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी बैटरी। ध्रुव, सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या है? सेकेंडरी बैटरी इज द वन विच इज रिचार्जेबल। भूल गया है तू? ठीक है, रिचार्ज जो कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, हुसैन, प्राइमरी। ओके, तो इनमें से किसको रिचार्ज कर सकते हैं, ड्राई सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो वो प्राइमरी हो गया। लेक्लांच सेल, अरे ड्राई सेल का दूसरा नाम लेक्लांच सेल है, अरे क्या डम है यार। मर्क्यूरी सेल भी नहीं, अभी देखा मर्क्यूरी सेल, वो भी नहीं है। लेड स्टोरेज बैटरी ही रिचार्जेबल है। हाँ, लेड स्टोरेज बैटरी ही रिचार्जेबल है। हाँ, तो अभी तो बहुत डाउट आ रहा मेरे को तेरे पे। ठीक है, सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन लेड स्टोरेज बैटरी इज, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 98। उसका मॉलिक्यूलर वेट है यार, अरे वो नहीं कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट क्या रहता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसकी वैलेंसी +2 है, मतलब 2 H+ आयंस है। तो 98 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 49। सो 49 शुड बी द आंसर, बट इट इज गिविंग, नो नो, एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट वेट। अगर आप देखोगे, इधर गलती होगी टिक में, बट एक्चुअली आप देखोगे इट विल कम टू 49। ठीक है, इधर हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, आपको याद है क्या, जब हम लोग वो सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग ने सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकाला था। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है, 23 डिवाइड बाय 1, क्योंकि वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। मैग्नीशियम का 24 डिवाइड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 12। देन इसका एल्यूमिनियम का 27 डिवाइड बाय 3, क्या आ रहा था ना, याद है कि नहीं? ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, और अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट। आई बात समझ में? तो H2SO4 के लिए 49 ही आना चाहिए उसका, क्या, इक्विवेलेंट वेट। ओके, हाँ देखो यहाँ पे गलती होगी। देखो, एज 1 मोल ऑफ H2SO4 इन्वॉल्व नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व हाउ मेनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व विल बी 2, बिकॉज H2SO4 कितने H+ आयन देता है, 2। तो ऑब्वियसली उसके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, 2, एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज द आंसर, 98 डिवाइड बाय 2।
ओके, तो अभी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कमिंग टू फ्यूल सेल एंड करोजन। और एक पार्ट मैंने बोला आपको बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट हेल्प्स यू डिसाइड विच एनोड टू यूज, व्हाट शुड बी द एनोड, व्हाट शुड बी द कैथोड। ठीक है, अब फ्यूल सेल्स, फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, होंडा हैज कम अप विथ अ कार लॉन्ग बैक बिफोर कोविड 2019 में ही। गूगल पे सिर्फ सर्च करो फ्यूल सेल कार बाय होंडा। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। तो उसमें दो ही सिलेंडर है, एक सिलेंडर हाइड्रोजन का, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का। कॉम्प्लेक्स इंजन है थोड़ा सा, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबस्ट होंगे। अभी आप लोग जो देखने वाले वही होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो कार रन होगी, उसका एक ही एमिशन निकलेगा, दैट इज वाटर वेपर। सो हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। नितिन गडकरी, द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी, ऐलान कर दिया, यूट्यूब पे वीडियो देखा उनका, अगले 5 साल में हाइड्रोजन कार्स सिर्फ सक्सेस ही नहीं करके दिखाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ कार्स अगले 5 साल में आपको हाइड्रोजन देखेंगे। ठीक है, अभी हो रहा है फेमस। ठीक है, और होंडा की जो कार है ना फ्यूल सेल, वो सिर्फ जीएसटी की वजह से इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाई, नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में भी लॉन्च होने वाली थी, बट जीएसटी की वजह से वो लॉन्च नहीं हुई। ठीक है, आपको अगर पता है कि बाइंग कार्स, सेलिंग कार्स इन इंडिया इज अ स्कैम, नॉट बाय द पीपल, नॉट बाय द कंपनीज हु सेल, बट इट्स अ स्कैम बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब स्कैम ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी टैक्सेशन इतना हैवी है। जैसे कि 4 मीटर की कार रहती, सब 4 मीटर की कार, सब 4 मीटर की कार मतलब क्या, जो कार 4 मीटर से छोटी है, जो कार 4 मीटर से छोटी 3.99 मीटर की है, तो उसके ऊपर टैक्स कम लगता है, 10-12% ऐसा कुछ टैक्स लगता है। लेकिन सुन मेरे भाई, जैसे ही 4.01 मीटर हो गई, ओके, तो टैक्सेशन 27% तक जाते हैं। और ये तो एक एक टैक्स है, बाकी के रोड मतलब रोड पर लेकर आने के लिए टैक्स, आरटीओ का टैक्स, इसका टैक्स, इंश्योरेंस, वो सब पकड़ के एक एक्चुअली अगर एक फॉर्च्यूनर अभी आप ले लोगे तो 48 से 54 लाख के बीच में जाती है फॉर्च्यूनर, बट उसका ओरिजिनल प्राइस सिर्फ 27 लाख है। ऊपर के पैसे तो सिर्फ टैक्स है मेरे भाई। सो बड़ी गाड़ी लेने में प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, गवर्नमेंट को टैक्सेस बहुत देने पड़ते हैं। तो इसी टैक्स के चलते होंडा की फ्यूल सेल कार इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाई, सो सैड। बट अभी ज्यादा बोलूंगा कार के बारे में तो ये वो कार टेक का वीडियो, क्या बोलते उसको, कार्स के रिव्यूज देते ना फैसल खान, वैसा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी 12th की केमिस्ट्री पे आ जाते हैं वापस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। तो लिखो फ्यूल सेल्स। कम ऑन, राइट ऑन। इसमें दो सिलेंडर्स है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन, बीच में हॉट KOH का इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। ठीक है, सो ये दोनों सिलेंडर्स गैसियस है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज अ गैस, आई होप यू नो दैट, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो इसको सिर्फ कंबस्ट करेंगे, कंबस्ट करने के बाद में क्या मिलने वाला है हमको, H2O वाटर वेपर मिलने वाला है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, और वो वाटर वेपर वी आर गोइंग टू जस्ट रिलीज, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो मतलब कार्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो ग्रीन एमिशन कार्स है ये, मतलब दे डोंट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच विल हार्म द एनवायरमेंट। आई थिंक वी शुड हैव डन दिस लॉन्ग बैक, अभी वो आ रहा है, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। Now you write on this. Hurry up. Yes, so how this reaction is taking place, just see 4H2 इसको 2H2 इसको split करके दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। So pay attention. We are having 4 hydrogens. Sir, how 4 hydrogens? Check 2H2, 2 2s are 4. So we are having 4 hydrogens. तो 4 hydrogens को हम लोग क्या दे रहे हैं, 4 OH माइनस दे रहे हैं। सर ये OH माइनस कहाँ से आए, OH माइनस आए, KOH सोल्यूशन था हमारा, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, देखो ना इलेक्ट्रोलाइट क्या था, KOH। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट शेल में, डू यू एग्री। तो हाइड्रोजन एक्टिंग एज द एनोड, एट एनोड हमेशा क्या होना चाहिए, एट एनोड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चारों हाइड्रोजन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये H और OH को कंबाइन कर दो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा, H2O भी कितने 4 H2O बन जाएंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मिले, वो 4 इलेक्ट्रॉन किसको देने, हमको कैथोड को देने, ऑब्वियसली कैथोड को देते। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन इज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, अब ये O2 है, ठीक है, O2 को ऐसा लिखता हूं O डबल बॉन्ड O, चलेगा। और वाटर ऐड कर रहे हैं, ऊपर से ले सकते हो वाटर, या सोल्यूशन हमारा KOH का एक्विस है, उधर से भी आ जाएगा वाटर। वाटर इज नथिंग बट H प्लस OH माइनस, डू यू एग्री, या वाटर इज नथिंग बट H प्लस OH माइनस। तो क्या कर लिया मैंने, वाटर को स्प्लिट कर लिया, 2H2 है, 2H प्लस OH माइनस लिख दिया। तो अभी क्या करो, ये H और O को कंबाइन करो, ये H और O को कंबाइन करो, दिख रहा है क्या,
ये H और O कंबाइन, ये H और O कंबाइन, तो क्या मिलेंगे, ये दो OH और ये दो OH, दिखाई दे रहा है क्या, ONH कंबाइन एक OH, ये ORH कंबाइन दूसरा OH, ऑलरेडी दो OH पहले से इधर है, टोटल कितने हो गए, चार OH, वो चार OH यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब ये सब करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े ये कंबाइन होने के लिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन हो गए, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से कैंसिल हो जाएगा, आधी से ज्यादा चीजें से कैंसिल हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, वट एवर सेम LHS RHS दैट इज गोइंग टू कैंसिल, तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, फिर 4OH- भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर H2O में से भी 2H2O और इधर 4 में से 2H2O कैंसिल, तो इधर 2H2 बचा, बचा क्या एग्जैक्टली, H2 बचा, इधर H2 लिख लिया OCR में, ओवरऑल सेल रिएक्शन में, तो H2 लिख लिया, फिर यहाँ पे O2 बचा रिएक्टेंट साइड पे, तो O2 लिख लिया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, 2H2, इधर 4 में से 2 चले गए, 2H2 बचे, तो इतना सिंपल रिएक्शन, इसके लिए मैंने बोला कि ये ऐसे सेल पे वर्क करने वाले कार, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन वगैरह कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं, सिर्फ वाटर वेपर, जो कि हार्मलेस है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो H2O मिलेगा, एंड दिस वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. Astronauts use करते हैं fuel cells, and fuel cells are pollution free. It's the future of EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी आगे का वर्जन, फ्यूल सेल्स। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सा बैटरी यूज हो रहा है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं यूज हो रहा है बेटा, लिथियम आयन बैटरी यूज हो रहा है, जो कि आपकी मोबाइल में है, लिथियम आयन बैटरी। आई अंडरस्टैंडिंग, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी अभी आपके जो रेगुलर कार्स है पेट्रोल और डीजल वाले, उनको स्टार्ट करने के लिए बैटरी लगता है, वो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, इन्वर्टर में लेड एक्यूमुलेटर बैटरी लगता है, बट आपकी ईवीज में जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल में जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है। ओके, लेकिन अभी लिथियम आयन बैटरी भी रिप्लेस हो जाएगा विद फ्यूल सेल टू गिव यू अ ग्रीनर एनवायरमेंट। चलो आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ H2 and O2 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल्सो यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल के मजे की बात यह है कि ये नेवर एंडिंग सेल है, मतलब देखो रिमोट का सेल कभी ना कभी खत्म होगा, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी कभी ना कभी खत्म होगा, आई एम कमिंग देयर, यू सिट, हाँ उधर। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं, कभी ना कभी हमारी लेड एक्यूमुलेटर बैटरी खत्म होगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, कभी ना कभी हमारे रिमोट की बैटरी खत्म होगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, बट फ्यूल सेल को कभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, रिप्लेस करने की ही जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहो, नॉन स्टॉप चलते रहता है, इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं ना। नहीं, एनवायरमेंट से तो सेपरेट करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली कैसे चलेगा भाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ हाइड्रोजन का है ना, अभी मसला क्या है जो हम लोग क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पता है, एक ही प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन गैस है ना बहुत लाइट है, और एस्केप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारे घर पे एलपीजी का सिलेंडर है क्या, एलपीजी के सिलेंडर में भी कभी कभी लीकेज रहता है, ऐसा पानी डाल के चेक करना पड़ता है, जब सिलेंडर लेके आता है भैया सिलेंडर वाला, तो उसमें कभी कभी लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डाल के चेक करते हैं, सोप बबल या सोप पानी, सोप वाटर से चेक करते हैं उसको कि उसमें बबल्स आ रहे हैं क्या, अगर बबल्स आ रहे हैं मतलब गैस में लीकेज, मतलब सिलेंडर में लीकेज है, तो वो तो खैर डेंस गैस है, उसका लीकेज फिर भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन गैस को स्टॉप करना लीकेज से काफी टफ है। हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज द स्मॉलेस्ट एटम ना, दुनिया का सबसे छोटा एटम कौन है, हाइड्रोजन, और लाइटर गैस है, तो उसको कंट्रोल करना, कंटेन करना वो चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजेस भी अभी हम लोग ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, और इनफ्लेमेबल भी है, बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड अ ब्लू फ्लेम, याद है ना। सो हाइड्रोजन गैस इज द फ्यूचर, कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स पे काम चल रहा है, हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, ठीक हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब रिचार्ज तो नहीं है वो, तो इट कैन बी आई थिंक बोथ ए एंड बी, या सेकेंडरी, ओके फाइन। सो thermodynamics efficiency of cell is given by minus NFE cell, माइनस NFE नॉट सेल, ये आंसर होना चाहिए, वो है थर्मोडायनामिक्स एफिशिएंसी, देखना है अभी हमको। ठीक है, फ्यूल सेल करोजन, करोजन का लास्ट पार्ट बाकी, चलो राइट डाउन दिस।